all the wonderful people gathered over here. With immense pleasure and joy, I announce that today is a very important day for us. We are celebrating annual day. The theme for this day, inspiring leaders. Here, inspiring leader means our kids or students. On this occasion, it's my pleasure to welcome the guest of the day. Chief guest, Dr. Vijay Bharadwaj, dentist. Mr. Vishnu Yadav, Parshad ji. I also welcome other special guest of the day, Dr. Mukut Singh Niranjan, MBBS, Dr. Ortho. Dr. Ashok Yadav, dentist. Dr. Mukesh Rajput, MD Medicine. Mr. सुदीप दीक्षित महाराज जी, माँ छोटा स्कूल आज के सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, पेरेंट्स, बच्चों सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। I extend a warm welcome to the parents and grandparents. Thank you all for being here. As you all know that this year we are going to complete second year of our journey. As a My Chota school, God has given us a very nice opportunity to take care of His most precious creation. And I believe that our students will be most amazing human beings on this planet. This journey would have been unthinkable without the immense trust and unwavering support of you all, the parents, who have been a part of My Chota school. Now I would like to mention that life is not all about textbooks and bookish knowledge. We need to learn many skills. Annual function provides excellent opportunity to learn practical life skills such as confidence, public speaking, leadership, coordination, teamwork, and so on. And these are the skills that will lead our children ahead in life. Today's program is a collective effort of the entire team of My Chota school. Our super energetic children and their enthusiastic teachers. We are super proud of each one of them. Let's give them a big round of applause for our teachers and students. एक बार सभी पेरेंट्स, अतिथि, यहाँ मौजूद सारे व्यक्ति हमारे एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कुछ लाइनें शेयर करना चाहता हूँ। जिन्होंने ठान ली मंजिलों को पाने की, these lines dedicated to our teachers and students, kids also. जिन्होंने ठान ली मंजिलों को पाने की, जिन्होंने ठान ली मंजिलों को पाने की, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, आप ईश्वर की सबसे प्यारी कृति हैं, आप ईश्वर की सबसे प्यारी रचना हैं। आपसे बेहतर कोई कुछ कर नहीं सकता, आपसे बेहतर कोई कुछ कर नहीं सकता। रियली यू ऑल आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। टीचर्स के लिए कुछ लाइनें डेडिकेट करता हूँ, समर्पित करता हूँ। जो टीचर्स होते हैं उन्हें कैसा भी स्टूडेंट दे दिया जाए, वो उनको कहाँ तक ले जा सकते हैं, आप इन लाइनों से समझ सकते हैं। जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है, जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। और समंदर तो परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन एक शिक्षक डूबती कश्तियों को ही जहाज बना देता है, लेकिन एक शिक्षक डूबती कश्तियों को ही जहाज बना देता है। तालियों में जोश नहीं दिख रहा, क्या बात है। हम तो बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 2009। तो मैं 2009 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, और मैं इस एरिया की बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि जो आइडेंटिटी, जो पहचान मैंने बनाई वो यहीं से बनाई है। और आप सभी पेरेंट्स की जो तालियाँ हैं उनमें उतनी ताकत नहीं दिखाई दी है जितनी दिखनी चाहिए। या तो ऐसा हो सकता है कि टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए पेरेंट्स की एनर्जी भी लो हो गई है। One more thing that I want to tell you, most of the students will have been first formal performance on the stage. So, biggest task
today is to give them enormous appreciation and motivation. Every child is unique, so please don't compare him with another child. मेरा मानना है हर बच्चा यूनिक होता है, खास होता है, स्पेशल होता है, विशेष होता है। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से मत करिए, क्योंकि जब उनकी हैबिट सेम नहीं है, उनका ड्रेसिंग मैनर सेम नहीं है, उनका रहन सहन, खान पान, हर चीज़ डिफरेंट है, तो हमारा बच्चा, हर बच्चा यूनिक है, विशेष है। उसको कभी भी कंपेयर मत करिए। कोई हो सकता खेल में बहुत अच्छा करता हो, कोई पढ़ाई में करता है, कोई एक्टिविटी में करता है, कोई किसी चीज़ में करता है। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो वो कर सकते हैं उन्हें करने दीजिए। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरा एक सजेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दें। जब आपका बच्चा स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस देता है और कहीं वो उस बीच में रुक जाता है, तो हम क्या करते हैं, अभी तो हो सकता कुछ नहीं कहेंगे, घर जा कर के डांटेंगे, मैं तुमसे बात नहीं करना, तुम बाहर रुक गए थे, इतने समय से मैंने आपको ड्रेस दिलाई, कपड़े दिलाए, फीस दिलाई, ये दिलाया, वो दिलाया, रुक क्यों गए थे? अरे आपने रुकना देखा, आपने उसकी हिम्मत को नहीं देखा क्या? वो इतना करेज जुटा करके स्टेज पर आया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आया, अगर उसने थोड़ा सा भी बॉडी के मूवमेंट्स कर दिए तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली निगेटिव थिंग्स को ही देखते रहते हैं, हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। क्या आपको कहीं पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती? आपको निगेटिविटी में मिला है। ह्यूमन नेचर है कि वो निगेटिव चीज़ों को जल्दी देख लेता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें आपने देखा हो कि उसने कुछ स्टेप्स बहुत शानदार किए। तो अगर आप ऐसा करें कि बेटा देखो, आपका वो वाला जो स्टेप था वो बहुत शानदार आपने किया, आपने ये चीज़ बहुत अच्छी की, आप देखना इसका इम्पैक्ट इतना शानदार होगा, अगली बार बच्चा उस काम को बहुत शानदार तरीके से करेगा। अगर हम इसी मेथड का यूज पढ़ाई में भी करते हैं, जैसे कई बार ये होता है कि बच्चे ने कम मार्क्स प्राप्त किए और हम बच्चे को डांट देते। कई बार तो कुछ महान पेरेंट्स होते, वे तो क्लास टीचर के सामने पीटीएम में थप्पड़ लगा देते हैं। भाई होशियार पेरेंट्स कर सकते हो, आपकी च्वाइस है, आपका बच्चा, लेकिन ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको देखना कि कितने मार्क्स उसके आए हैं, और आप उसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेटा ये 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, इसमें थोड़ा सा कम आए, मुझे भरोसा है आप मेहनत करना, अगली बार बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स की तारीफ बहुत महत्वपूर्ण होती है, और पेरेंट्स तारीफ नहीं करता, बच्चों की तारीफ अन्य जगह से उनको सुनने को मिलती है। अगर पेरेंट्स भी उनके अच्छे कामों के लिए तारीफ करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो काम अच्छा नहीं है उसके लिए तारीफ करें, जो चीज़ें अच्छी हैं उनके लिए आप तारीफ कर सकते हैं, बाकी के लिए आप बता सकते हैं बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो बहुत शानदार इम्प्रूवमेंट आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है और मेरा बिलीव भी है। कई बार हम देखते हैं, हम बच्चों को राम बनाते हैं, कृष्ण बनाते हैं, हनुमान बनाते हैं, बहुत सारे रोल बच्चे हमारे प्ले करते हैं। ज़रूरी ये है कि बच्चे उनसे कुछ सीखें, उनके आदर्शों पे चलें। जैसे मैं एक रामायण का छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ। जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, जब माता जानकी का स्वयंवर हो रहा था, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं इस बात को, तो उस वक्त वहाँ पर परशुराम जी आए, और जब परशुराम जी आए तो वो नाराज हुए, किसने धनुष को तोड़ा? Who had broken the धनुष बाण? किसने तोड़ा? तो लक्ष्मण जी वहाँ थे। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित स्वभाव के थे, तो वो बोले कि श्री राम ने तोड़ा है। तो इस पर परशुराम जी ज़्यादा नाराज हो गए। लेकिन आप अगर यहाँ देखें, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। हम चाहें तो अपने एपिक्स से, अपने ग्रंथों से, अपने जो रिलीजियस हमारे ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वहाँ भगवान राम बड़ी विनम्रता से परशुराम जी से बात करते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो रियली व्यक्ति पावरफुल है या विद्वान है, पढ़ा लिखा है, वो हमेशा विनम्र होगा। विनम्रता इस बात को दिखाती है कि कोई व्यक्ति बहुत सिविलाइज, पढ़ा लिखा और सभ्य है, और जो व्यक्ति पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको थोड़ा सा पावर का घमंड होता है, तो उनको बिहेवियर हमेशा आपको रूड दिखेगा। ये पढ़ाई लिखाई की ताकत है कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो है व्यक्ति को विनम्र, सिविलाइज, सभ्य बनाती है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी ने आज के प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया होगा।
इसका आनंद लिया होगा। माँ छोटा स्कूल आप सभी पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, आज के सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।